Father, I thank you so much for this time of worship and an extended family and community of brothers and sisters in you. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम में से हर एक जन के लिए प्रभु जी जो तुझ में एक परिवार है प्रभु जी। We thank you for your word. और आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Show us wonderful things. प्रभु जी आप अद्भुत बातें हमें दिखाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. I'd like to welcome all those who watch online also. Yes, और Welcome. जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। Okay, today we are heading into Christmas. It's like this season is increasing and building up. तो जो समय है क्रिसमस की ओर हमारा और भी पास होता जा रहा है। And I'd like to turn to the book of Isaiah chapter 7. और चाहते हैं कि हम निकालेंगे यशाया की किताब और उसका सातवां अध्याय। Okay, there are Bibles in this in those seats also, I think. या सीट्स में भी ना बाइबल Yeah. आपके पास। We'd like the children to go, please. 11 and below. योमी Sorry, मैम को I आज did नहीं बैठना हमारे not पास। announce. बच्चों तुम लोग जा सकते हो बेटा संडे All स्कूल। the little ones, जोली लीव ओके टेक योर जैकेट। have fun, and we'll see you all in half an hour. Isaiah chapter 7 verse 14. तो यशाया उसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत। And it says, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा जो सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। Okay, this scripture was quoted hundreds of years later by the writer of Matthew, who said, "This is the sign that Jesus is the Messiah. The virgin will have a child." मतलब ये जो वचन है हजारों साल बाद मती में उसने बताया कि एक कुंवारी होगी और गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। Okay, you can tie this up to Genesis when we talked about it. The seed of the woman will crush the head of the devil. All the way in Genesis when God promised Eve that a woman will have a child. और आप देख सकते हैं कि जो कि पिछली बार हम लोगों ने उत्पत्ति में से बात की थी कि किस प्रकार उस औरत का जो वंश है वो जो बीज है वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। And Isaiah, hundreds of years before Jesus, is saying, "The Lord himself will give you a sign." और यशाया भी 100 साल या सैकड़ों साल बाद यहाँ पे बता रहा है कि कैसा होगा। The Lord will give you a sign. कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें एक चिन्ह मिलेगा। A virgin will conceive. कि कुंवारी गर्भवती होगी। Not a married woman. कोई शादीशुदा औरत नहीं। Everybody who is in the medical realm knows that is an impossibility. How can a woman conceive without a man being? How can a virgin conceive? मतलब वो देख सकते हैं जो लोग भी मेडिकल में हैं, हर एक इंसान जानता है कि कैसे कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो सकती है बिना आदमी के। By default, you have to be married to conceive. You have to have a man somewhere in the picture to conceive. अगर गर्भवती होना है तो कहीं ना कहीं पिक्चर में आदमी आता है। But this is the sign which God gave. लेकिन ये जो चिन्ह है प्रभु ने दिया। That word became flesh. God's word became flesh and actually caused conception. तो जो वचन बताया गया था यूहन्ना में कि कैसे कि परमेश्वर का जो वचन है वो देह बन गया और उससे वो गर्भवती हुई। The sound of God's word became physical matter. Interesting. तो जो परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले थे या जो आवाज हुई थी उससे क्या हुआ वो असलियत बन गई बात। And she'll give birth to a son and will call him Emmanuel. कि वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। Okay. Was Jesus called Emmanuel? क्या प्रभु यीशु मसीह को इमैनुएल बुलाया गया? No. नहीं। But what is this word which is here? It means something. This word Emmanuel. लेकिन ये जो इमैनुएल है इसका मतलब कुछ है। It means God is with us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Most of us might know this. और हम में से काफी जन हैं जो जानते होंगे इस बात Emmanuel को। means that babe, God is with us, God is going to protect us, God will help us. मतलब हम में से काफी लोग जानते हैं इमैनुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है या वो हमें संभाले रहेगा। But if you look at the context of this scripture, लेकिन अगर आप इस वचन की असलियत में या उसकी गहराई में जाते if you हैं have to मतलब go a देखते few हैं, verses before, you don't need to turn to it. निकालने की जरूरत नहीं है, देखते हैं हम। But I'll give you a little background and then you'll understand why this title was given.
अगर हम पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं, तो पता चलता है कि ये नाम क्यों दिया गया था। Okay, there was a king in Israel at this time, उस समय में एक राजा था इज़राइल में, and he was fully afraid और वो बहुत ही डरा हुआ था because he was going to be attacked. क्योंकि उसके ऊपर हमला होने वाला था। 3 armies were heading up to attack and finish the kingdom of Judah. मतलब जो 3 सेना के लोग हैं वो जा रहे हैं यहूदा के राजा को खत्म करने के लिए। Okay, in those days, if you read the Bible, you'll see Israel, Judah, you know, it was always a separation. और अगर आप पुराना नियम पढ़ें तो उस समय हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता था, यहूदा का राजा है या फिर इज़राइल का राजा, मतलब कोई ना कोई बात वहाँ चलती रहती थी। It was like India and Pakistan, that is how it was. वो ऐसा था जैसे कि भारत या पाकिस्तान, They were constantly fighting, these 2 kingdoms. They were partitioned and fighting. मतलब 2 राज्य थे जो कि लगातार उनके बीच में लड़ाई होती रहती। And this king is afraid. तो ये जो राजा है वो डरा हुआ है। And in verse 3, if you have your Bible, it says, the Lord said to Isaiah, and verse 4 says, tell him to be calm and don't be afraid, don't lose heart. और सेम है ना, यशायाह 7 Verse 4, उसके 4थी आयत में लिखा है, और उससे कहा सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात अच्छाई पूर्ण। yeah, you know, so God is telling Isaiah, don't be afraid. मतलब यहाँ पे परमेश्वर यशायाह से कह रहा है कि डरे ना। When you see the storm coming, जब आप देखते हैं कि पूरा तूफान आ रहा you है, see life, it's going to hit you and you feel, what am I going to do? और जो आपको महसूस होता है कि जो हमारा जीवन है उसके ऊपर कितना मतलब बुरा असर हो रहा है, He says, tell them, don't be afraid. लेकिन परमेश्वर वहाँ कहता है कि तुम ना डरो। Verse 7 और उसके बाद 7वीं आयत में says, this is what the sovereign Lord says, it will not take place, it will not happen. What you are afraid of, it won't take place, it won't happen. मतलब 7वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि जिससे तुम डर रहे हो, इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। And then verse 10, और उसके बाद 10वीं आयत में God tells the king, you want proof? Ask me for some proof. How is my word going to become true? और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई सबूत चाहिए है तो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सबूत दूंगा। And you know what that king says? आप जानते हो राजा ने क्या कहा? How can I ask God for a sign? उसने कहा मैं कैसे परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग सकता हूँ। Sometimes in life we think, how can I pray? How can I ask God for a sign? What will, you know, God is God. He can do whatever he likes. और कभी कभी हम अपने जीवन में सचमुच ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं अरे भैया वो तो परमेश्वर ही है, खुदा ही खुदा है, मैं क्या उससे मांगूं, वो तो परमेश्वर है, वो जो चाहे करेगा। And God says through Isaiah, लेकिन यहाँ परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहते हैं, hear now, you house of David, is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. और अगर 12वीं आयत में देखिए वहाँ लिखा है उसकी 2-3 लाइनों में, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? God is talking about ask for something. यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि हम कुछ उससे मांगे, उससे Ask कुछ for a कहें, sign. उससे कुछ हम चिन्ह मांगे। And what was his answer? और उसका उत्तर क्या था? A virgin will conceive and give birth to a son, and you will call his name, God is with us. आमीन। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कही गई है कि प्रभु से उसने चिन्ह मांगा, और जब मांगेंगे तो प्रभु ने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, और उसके नाम का मतलब होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। When we are worried, when we are concerned, this is the sign God gives us, he is with us. जब भी हम चिंतित होते हैं, उदास होते हैं, तो यही वो उत्तर है कि परमेश्वर हमारे साथ है। God got fed up with them not wanting, you know, they went asking, they were always afraid, they were always cringing, always hiding. He said, ask me for a sign, I am with you. मतलब परमेश्वर बड़े ही परेशान हो गए होंगे उनसे उस समय में कि ये लोग मुझसे कुछ नहीं मांग रहे, ये मुझे उकता रहे हैं कि मुझसे बोल ही नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे मांगो, मुझसे पूछो। Is there anyone in this room who does not have stress in their life? Please tell me. I will come and sit at your feet and learn from you. अगर आप में से किसी के पास भी चिंताएं नहीं हैं, आप बताएं तो ब्रदर आपके पैरों के पास आके बैठेंगे और सीखेंगे आपसे। You know, it's so easy to say, oh, this person's life must be very calm and cool. They have everything.
या कल ही रात को हम लोग ऐसी बात करते हैं और ये स्ट्रेस होता है और वो, तो मैंने कहा मेरे को नहीं होता कभी स्ट्रेस। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हे प्रभु होता या नहीं होता है, सोचा मैंने, क्योंकि कभी कभी फिर आप ही बता रहे थे कि ऐसा स्ट्रेस भी होता है जो हमें पता नहीं चलता। We don't know. It's stress. It's cortisol, isn't it? Which comes into your blood. You don't realize. It might be even for planning a party or planning a church service, but the cortisol is turning up. चाहे कोई सी भी चीज़ें हो, चाहे आप खुशी का काम करने जा रहे हो, है ना, फिर भी स्ट्रेस आता है जो कि हमें महसूस नहीं होता। शायद ऐसा मैंने अपने लिए सोचा, अच्छा शायद ऐसा हुआ हो या। But what is God's answer? लेकिन यहाँ परमेश्वर का उत्तर क्या है? Emmanuel, He is with us. कि इमैनुएल परमेश्वर हमारे साथ है। Friends, when we read this verse in the light of Christmas, we think God was promising that baby. अगर हम ये बात जो है क्रिसमस के दिनों में जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अरे प्रभु ने तो वो एक छोटे बेबी के लिए बात You know, we think of the manger and little baby Jesus born, God with us, finally came to earth. मतलब वो छोटा बेबी जो चरनी में लेटा है और अब वो हमारे साथ आ गया, ऐसा सोचते हैं हम। But when this prophecy was given, लेकिन जब ये भविष्यवाणी हो रही थी, it was the sign of a warrior. ये तो एक चिन्ह था एक योद्धा का। It was the sign of somebody coming to rule, someone coming to reign, someone coming to fight our battles for us. Yes, ये तो वो चिन्ह था कि वो योद्धा आ रहा है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। That is the sign of Emmanuel. वो है इमैनुएल का चिन्ह, उसका मतलब The God who comes and fights our battles. वो परमेश्वर जो आता है और हमारी लड़ाई लड़ता है। Christmas was just the beginning. God was seeing the big picture of Himself coming and fighting our battles. मतलब क्रिसमस जो था वो तो एक छोटी सी शुरुआत वहां पे दिखाई गई है, लेकिन परमेश्वर तो आगे तक का सोच रहा है। It is the title of a warrior. वो तो एक टाइटल है एक योद्धा का। God's answer to a king who was afraid. वो राजा जो कि डरा हुआ था परमेश्वर का, उसको ये उत्तर देना था। It was a sign which was not natural. ये ऐसा साइन था या ऐसा चिन्ह था जो कि नेचुरल या होना नहीं, समझ नहीं आता, असंभव वो था ये। You know, but it was something with grace and power. लेकिन ये कुछ ऐसा था जो कि अनुग्रह और सामर्थ के साथ था। In our lives, हमारे जीवनों में during this Christmas season, ये क्रिसमस के समय में you know, when you think of the name Emmanuel, जब आप इमैनुएल नाम को सोचते हैं, God being with us, परमेश्वर हमारे साथ हैं, it's not just Him coming down as a baby and in that manger and all of that. No, it is God who comes to us when the situation is impossible. ऐसा नहीं कि वो बेबी हैं, बच्चे हैं तो हमारे साथ है, नहीं। आप जब भी इस नाम के बारे में सोचते हैं इमैनुएल, हमें देखना है क्या बोलता है, It is a sign that God is coming into our situation. उसका मतलब ये है कि जो हमारी परिस्थिति चल रही है उसमें परमेश्वर हमारे साथ है। The miracle is not in the heavens. जो आश्चर्य कर्म है वो स्वर्ग में नहीं है, It was in a womb. वो स्वर्ग में नहीं था वो आश्चर्य कर्म, वो तो उसकी कोख में था। Imagine that. आप सोच के देखें। We always like to see something strange which is happening outside. No, no, no. The miracle, the biggest miracle of all started in a womb. मतलब हम देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसे आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था वो उस मरियम के क्या था, कोख में था। The highest form of God's creation is what? सबसे ऊंचा जो सृष्टिकर्ता का जो क्या बोलेंगे उसे, His सृष्टि. What is the highest form? मतलब सृष्टि में सबसे ऊंची क्या बात है? It was you and me. Creation. The human being. सबसे बड़ी सृष्टि जो खुदा ने करी है उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो आप और हम हैं। Yesterday my dad was explaining to Josiah how far is a light year on his call with him. लाइट है? Light year, how many years does light take to travel? हाँ, तो अच्छा, तो कल पापा बात कर रहे थे जोसाया से, इनके पापा, तो वो बात कर रहे थे कि जो बिजली है वो कितना टाइम लगाती है इधर से उधर होने के लिए। You know, anyone knows it by heart? किसी को पता है फिजिक्स या साइंस के? मेरे को नहीं पता। I know it's lots of zeros. वो बहुत सारे जीरो हैं। You know, and then you think we are only in one little galaxy, Milky Way. आप फिर उसमें देखेंगे तो हम तो बहुत ही छोटी चीज है। And then there are clusters of galaxies. उसके बाद और भी आप देखेंगे गैलेक्सी में बहुत सारी मतलब चीजें हैं। And it takes so many, I don't know, thousands of light years to cross from one galaxy to the other. It boggles the mind. तो मतलब हजारों साल लगते हैं लाइट को इधर से उधर होने में। And for us to travel, it's beyond us. We can't imagine it also. मतलब हम उसको सोच नहीं सकते।
But God chose to make us as the pinnacle of all His creation, the human being. लेकिन परमेश्वर ने चुनाव करा कि हम सबसे ऊपर हैं, इंसान। You know, as science keeps discovering more and more and more about humanity, it gets more and more wonderful, isn't it? और जितना वैज्ञानिक लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, तो वो और भी बड़ी बात लगती है इंसानों के विषय में। God chose to do His biggest miracle, creating Himself to come into a womb. मतलब परमेश्वर ने सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म करा कि खुद को इंसान के रूप में आने के लिए कोख में। You know, the highest form of creation is humanity. The biggest miracle is God becoming human. मतलब सृष्टि में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंसानियत, एंड फिर जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है वो है प्रभु यीशु मसीह कोख में आए। John 1 verse 14. और अगर आप देखें यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 14 We आयत, talked about this before that. उससे पहले भी हमने ये बात करी है। The word, God's word became actual cells and made His dwelling, His house among us. मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो सच में कण के रूप में आ गया और हम में रहा अंश। The word, God's word, it became flesh and it started living among us. परमेश्वर का जो वचन है वो देह बन गया, शरीर बन गया और हम में रहने लगा। You know, in the olden days in Israel, और पुराने दिनों में इज़राइल में they had their temple, their tabernacle, there was an outer court, then the priest would go next level, next level, next level. It was like that. Then the Holy of Holies, nobody could go in. पुराने समय में बड़ी ही ध्यान से रखते थे कि अंदर का, फिर उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का, जो कि महापवित्र स्थान होता था। You know, till today, wherever there are temples, that is how the form is. You know, there's an inside place where only the priest could go, nobody else can go inside, and then other people can stay outside. That was an ancient form of religion. मतलब पुराने जमाने में आज तक भी जो भी टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनमें अभी भी ऐसा करते हैं कि कुछ जगह हैं जहाँ पे सिर्फ जो प्रीस्ट होता है वही जा सकता है, फिर आगे और कोई जा सकता है। इस प्रकार अभी भी मानते हैं लोग। But with Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ that all does not exist anymore. अब ये सब नहीं है। Because God has come to us. क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे पास आ गए। It is not a building. वो कोई बिल्डिंग नहीं है। Friends, where is the most sacred place on the earth? Tell me. आप बताएं दुनिया में सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? Which is the most holy place on earth? Any idea? दुनिया में या अर्थ पे, पृथ्वी पे सबसे पवित्र स्थान कहाँ पे है? We've been to Israel 2 or 3 times. हम लोग 2 या 3 बार इज़राइल होके आए। Beautiful place. बहुत ही खूबसूरत जगह है। Just to think that, wow, these are the sites which Jesus saw where the church started. मतलब वो देखना, वहाँ पे जाना कि अरे हाँ, यहाँ पे सच में मेरे प्रभु चले थे या मेरे प्रभु रहे थे यहाँ। We've been to that wall where everybody prays and puts pieces of paper to pray. और उस दीवार के पास गए जहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट होती है दीवार में डालते हैं। But which is the most holy place? लेकिन फिर भी सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? You know, someone here, they went to Rome recently. अभी कोई भी है, कोई जन जो रोम गए थे अभी। Beautiful churches there, Vatican. वहाँ पे बहुत ही अच्छा चर्च है। Anyone else has been to Rome? आप में से कोई रोम गया है? One day we'll go. But is that the most holy place? क्या वो सबसे पवित्र जगह है? Westminster Abbey? जो एबी है लंदन में ना? हाँ, लंदन में। मैं पता है क्या, सॉरी, मैं बहुत सारी जगह घूमी आती हूँ लंदन, यार मैं फिर भूल जाती हूँ नाम, मेरे को कुछ याद नहीं रहता क्योंकि सब एक जैसा लगता है ना। फिर तो वहाँ वो भी है एक जगह। हाँ। Which is the most holiest place on this earth right now at this point of time? अभी और इसी समय पूरी दुनिया में, इस धरती में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? You want the quick answer? आप चाहते हैं कि जल्दी से बताएं, नहीं तो आप बोलोगे Just look down. Look down between your feet. नीचे Just bend देखिए। down and see. That, my friend, is the most holy place. Oh my goodness, वो तो ये वाला चर्च निकला। सॉरी। Where your feet are, we जहाँ are पे- God's most holy place. जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ भी हम होते हैं, प्रभु का नाम ले रहे होते हैं, वही पवित्र स्थान बन जाता है। So you can carry that God with us wherever you go. तो जहाँ भी हम चलते हैं, जाते हैं प्रभु को लेके, God has chosen us as humans to carry His presence, like that old temple, like that old tabernacle. It's you and me who are that tabernacle now. तो वो जो टैबरनेकल है या वाचा का संदूक है, वो अब हम लोग हैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाएंगे
प्रभु को उसकी उपस्थिति को अपने साथ लेके जाएंगे। We carry all that Old Testament history of Jerusalem. It is with us now. Where we go, any place we go. तो जितने भी पुराने नियम की जो भी इतिहास है वो आज हम में है। That is the sign of Emmanuel. तो वो है इमैनुअल का चिन्ह। God coming into humanity so that humanity carries God everywhere. तो परमेश्वर इंसान के अंदर आ गया ताकि इंसान जहां भी जाए वो उसको लेके चले। Through Jesus. प्रभु यीशु मसीह Can के you द्वारा। imagine what a huge miracle that is, that suddenly you and I become the most holiest place? मतलब कितना बड़ा आश्चर्यकरम है कि अचानक से आप और हम वो सबसे महापवित्र स्थान बन गए। Do we act like that? Maybe लेकिन not. हो सकता है हम इस प्रकार हमारे काम ना हों। Do we think like that? Definitely not. क्या हम इस प्रकार सोचते हैं? Simple example. एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है। Someone cuts in front of us in the traffic. How do we feel? Do we feel like God's holy place? अगर कोई हमारे सामने ट्रैफिक में हम गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक से कोई कट कर दे तो क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम प्रभु का पवित्र स्थान है उस समय में? You know, or sometimes we don't act like the holy place of God. I do that. I cut in front of people. That's not acting like God's holy place. और बहुत बार हम लोग भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि हम प्रभु के पवित्र स्थान है। हम भी कुछ भी कर देते हैं। This is the miracle of Christmas where we became God's holy place. लेकिन क्रिसमस का जो आश्चर्यकरम वो यही है कि हम परमेश्वर के महान पवित्र स्थान बन जाते हैं। John 14:17. और अगर आप देखें यूहन्ना 14:17, The Spirit of truth lives with you and will be in you. कि जो सत्य का जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर रहता है। And God's Spirit lives with us. कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे अंदर रहती है। You know, we talked about how the Word became flesh, we become Christ's body. This is what it means. मतलब हमने बात करी थी कि कैसे जो वचन है प्रभु का वो देह बन गई और हम में रहता है। Friends, we carry God. कि हम परमेश्वर को लेके चलते हैं। Just as the Virgin Mary carried Jesus in her womb. बिल्कुल ही वैसे जैसे माता मरियम अपनी कोख में यीशु मसीह को कैरी कर रही थी। You and I carry him today. आज आप और हम यीशु मसीह को कैरी करके चलते हैं। Think of it. आप सोच के देखें। We think Mary was so pure and spotless, she received Jesus in her womb. हम सोचते हैं कि मरियम बहुत ही शुद्ध और पवित्र थी इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी कोख में लेके आई। The miracle is that God chose us who are not pure, not holy, to still carry him. लेकिन आश्चर्यकरम तो ये है कि जो हम लोग जो बिल्कुल ही शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो आश्चर्यकरम है कि उसने हमें चुना कि हम उसको लेके चलें। Think of it. We सोच के bear देखें। the Christ in us. कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेके चलते हैं। What did Mary do with that baby in her womb? तो जो मरियम है उसने क्या करा जब पेट में उसके बेबी था? Did she say, no, I want to keep him inside me only? क्या उसने ये सोचा कि अब मैं उस बेबी को अपने अंदर ही रखे रहूंगी? She said, no, I don't want to give birth to this child. I am carrying God inside of me. Why should I release him into the world? Did she think like that? क्या मरियम ने ऐसा सोचा नहीं अब तो देखो परमेश्वर खुदा मेरे अंदर रहता है अब तो मैं इसको डिलीवर नहीं करूंगी? You know, if a baby during pregnancy is even 1 week late or 2 weeks late, the parents start panicking. The mother starts getting worried. What's happening? What's happening? Why isn't the baby being born? जब मम्मी लोग होती हैं अगर बेबी 2 हफ्ते थोड़ा सा देर हो जाती है तो कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग। You know, because that baby is growing bigger and bigger and bigger. And then you know, oh my goodness, how is this going to be? और बच्चा तो बड़ा हो रहा है और फिर वो क्या हो जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं। You know, whereas you see some kids are born early. लेकिन आप देखते हैं कुछ बच्चे हैं जो जल्दी पैदा हो जाते हैं। You know, like our Joel, he was born one month early. तो जोली जो है वो 1 महीने पहले आ गया। You know, he is tiny and skinny and just he looked like a little. His skin was transparent. It's very अजीब से tiny. जो लगते हैं ना बच्चे थोड़े वैसे से। बेबी है ये नहीं है ये लाइक When we held उसको जब सॉरी उसको जब कपड़े में लपेटा ना देन ओनली आप फील कर सकते थे कि बेबी है व्हेन यू उसको रैप करते हैं क्लॉथ के साथ। because he was so लेकिन जब tiny. बिना कपड़े रखोगे तो पता नहीं वो कितना छोटू सा लगता Yeah, है। he'd like crawl up. You know, he's yeah, like I mean, tiny, हमारे पास not cute and cuddly, photo- round baby. No, he's like skinny. फोटो है हमारे पास उसको जैसे फीड करके बर्ब दिलाते हैं ना डकार वकार दिलाते हैं वो तो छोटे छोटे पैरों से ऊपर चढ़ रही हूँ यूं करके।
तो हम लोगों ने पहली बार देखा, लाइक 1 वीक का बेबी, और अरे बाप रे ये कैसे चढ़ रहा है ऊपर, देखो। Yeah, but Josiah was born at the correct time. लेकिन जोसाया जो था वो सही समय पे पैदा हुआ। You know, and I'm sure many of us have had that experience. और हम में से काफी जनों ने ये अनुभव हुआ होगा। The point is, Mary did not hold that child. लेकिन जो बात ये है कि जो मरियम थी वो बच्चे को पकड़ के नहीं रखना At the चाह रही। correct time, she had to give birth so that Jesus could come into the world. मतलब सही समय पे प्रभु यीशु मसीह को बाहर लाना था ताकि यीशु मसीह दुनिया में आ पाए। Friends, you and I, इसलिए आज आप और हम, you and I, आप और हम, we carry Christ in us. कि मसीह को हम अपने अंदर लेके चलते हैं। Do we just hold him in and keep holding him inside? क्या हम मसीह को पकड़े रहें अंदर ही अंदर? He has to be manifest into the world through you and me. लेकिन मसीह को तो हमें दिखाना है अपने और आपके, हम सब के द्वारा। We are not birthing Christ, हम लोग मसीह को जन्म नहीं दे रहे, but when we manifest who he is, लेकिन जब हम दिखाते हैं कि वो कौन है, that is the only way he comes into the world, by how you and I act. वो जब ही होता है जब हमारा व्यवहार दुनिया में कैसा है, उसकी वजह से पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है। We can sing all the songs we want, we can do all the actions, but if we are not practically acting like him, Yeah. we can never bring Christ into the world. हो सकता है हम कोई भी गाने गाएं या दुआएं करें, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप से प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं जीते हैं तो हम उसे नहीं दिखा सकते। The holiest place is where our feet walk because we carry him. और जो सबसे महापवित्र जगह है वो ये है जहाँ पे हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह को लेके चलते हैं। So as we wrap this up, इसलिए जब हम अंत में जाते हैं how are we living? कि हम अपना जीवन कैसे जीते। As if Jesus is far away sitting in heaven and we are here doing our own thing? क्या ये ऐसा है कि प्रभु तो स्वर्ग में बैठे हैं और हम यहाँ धरती पे हैं और हम कुछ भी कर रहे हैं? Or do we realize that really we are carrying him? और या हम ये सच में मानते हैं कि हम मसीह को लेके चल रहे हैं? You know, during the week, और हफ्ते में जो है how is it with our lives? हमारे जो जीवन है उस हफ्ते में हम कैसे रहते No, हैं? I'd like us to keep being reminded, no, we carry God inside of us. मतलब हम चाहते हैं कि हम ये याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अंदर है। Whatever it is, we carry God. जो भी है हमें ये मानना है कि हम मसीह को लेके चल रहे हैं। Emmanuel is manifest through you and me. जो इम्मानुएल है वो दिखेगा आपके और हमारे द्वारा। Let's close our eyes and pray.